آغاز میں آپ کو بتائیں کپتان اور نائب کپتان پروٹیاز کے سامنے بن گئے چٹان۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ڈو اور ڈائی میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا۔ شاہینوں نے 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف ایک اوور پہلے حاصل کیا۔ 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان علی آغا میچ کے ہیرو قرار۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اسکور کا دباؤ ضرور تھا لیکن اسکرین دیکھنا چھوڑی تھی۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں سوچا تھا 320 رنز بنیں گے لیکن کلاسن ٹوٹل کو 350 کے پار لے گئے۔ بالرز کو غلطیوں پر قابو پانا ہوگا۔ پچ بیٹنگ کے لیے بہت اچھی تھی، یہی سوچا تھا میچ جتنا لمبا کریں گے جیتنے کا چانس اتنا زیادہ ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے ہیرو سلمان علی آغا کہتے ہیں فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف بھی بڑا سکور بنائیں گے۔ سلمان آغا یا سپر مین؟ نیشنل سٹیڈیم میں گیند بازوں نے تو مایوس کیا لیکن سلمان علی آغا کے 2 کیچوں نے شائقین کے پیسے وصول کرا دیے۔ سلمان نے ریکو اور میتھیو بیٹر کے شاندار کیچ دیے۔ رضوان اور سلمان لے آئے ریکارڈ ساز کا طوفان۔ ریکارڈ ہدف کے تعاقب میں کپتان اور نائب کپتان نے بے شمار ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یقین نہیں تھا کہ پاکستان اتنا بڑا ہدف حاصل کر لے گا لیکن سلمان آغا اور محمد رضوان نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ شائقین کرکٹ جنوبی افریقہ کے خلاف قومی ٹیم کی کامیابی پر خوش، کہتے ہیں سلمان آغا میچ کے ہیرو ہیں۔ امید ہے ٹیم اسی طرح چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے گی۔ انشاءاللہ نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا جو فائنل ہوگا، جو ہم نے پنجاب کے اندر ہارا تھا وہ سندھ کے اندر جیتیں گے۔ پاکستان ہمیں توقع نہیں تھی کہ افریقہ سے جیتیں گے۔ 100 سے پہلے 3 وکٹیں گر گئی تھی، ہم تو امید ہار چکے تھے کراچی والے پاکستان کا میچ ہار گیا، ہم تو جا رہے تھے۔ یہ تو کرشمہ ہو چکا ہے بھائی، کم بیک انہوں نے ایسا مارا جو ہم نے یقین نہیں رکھا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی میں مومنٹم اسی طریقے سے جو ہے وہ لے کے کیری آن کرے۔ پاکستان اتنی امید نہیں تھی کہ اتنا ہائی رن چیز ہو پائے گا۔ ماشاءاللہ سلمان علی خان نے بہت اچھا کھیلا، لوگ نے بہت انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا۔ چیمپئنز ٹرافی بھی پاکستان کی ہوگی اور اسی طرح ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ ہمارے پلیئر نے ایک دوسرے کو کمبینیٹ کیا ہے ساتھ میں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 7 ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن وزارت قانون اور انصاف نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد جاری کیا۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ میں 6 نئے اور 1 عارضی ججز کے تقرر کی منظوری دی تھی۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ میں ججز کے تقرر کی منظوری وزیر اعظم کے ایڈوائس پر دی۔ وزیر اعظم نے جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ججز کی تعیناتی کے ایڈوائس صدر کو بھیجی تھی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عامر فاروق سمیت 6 ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ سپریم کورٹ کے جج تعینات، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین، جسٹس اشتیاق ابراہیم سپریم کورٹ میں جج تعینات۔ میاں گل حسن اورنگزیب کی سپریم کورٹ کے قائم مقام جج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت قانون نے سپریم کورٹ میں تعینات ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات۔ جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کیے گئے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات۔ جسٹس سرفراز ڈوگر مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے۔ اس سال اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں نے ریکارڈ ساز کیس نمٹائے۔ مجھے آپ کے کام پر فخر ہے۔ جن ججوں کی ترقی ہوئی انہیں مبارکباد، جن کی نہیں ہو سکی وہ مایوس نہ ہوں۔ آپ بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کا وقت بھی آئے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا اپنے اعزاز میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے عشائیے سے خطاب، کہا ضلعی عدلیہ انصاف فراہمی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ضلعی عدلیہ سے بھی اس بار ایک جج کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جج سائلین کو قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں اس سفر میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ 26ویں ترمیم میں لکھا ہے جج ٹرانسفر کریں گے تو سینیورٹی برقرار رہے گی۔ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جج جس کورٹ میں جائیں گے اسی کا حلف لیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا پروگرام خبر میں اظہار خیال، کہا جج جب حلف اٹھاتا ہے تو اسی وقت سے سینیورٹی شروع ہو جاتی ہے۔ جج اگر ٹرانسفر بھی ہو جائیں تو سینیورٹی حلف کے مطابق ہوتی ہے۔ آئین کے مطابق ہائی کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا ہی حلف اٹھاتا ہے۔ 26 امینڈمنٹ آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج جب ٹرانسفر کریں گے آپ اس کی، تو اس کی سینیورٹی وہی ہوگی جو اس کی پرانی کورٹ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جس کورٹ میں جائیں گے اس کورٹ کا اوتھ لیں گے، یہ نہیں ہے آئین میں لکھا ہوا۔ ایک جج جب اوتھ لیتا ہے انیشلی، جب وہ جج بنتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ اوتھ لے رہا ہوں اس کورٹ کے اندر، اس کی سینیورٹی اس دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہیں اور تو اس کی سینیورٹی ہے وہ تو اسی ڈیٹ سے ہوگی جس ڈیٹ سے اوتھ لیا ہے اس نے۔
वहाँ पर इस कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान है। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी लिस्ट बहाली की इस्तदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खैर मकदमी पैगाम में कहा, वो और पाकिस्तानी कौम तुर्किया के सदर का पाकिस्तान में पुरतपाक खैर मकदम करती है। सदर एर्दोगान एक बसीरत वाले सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्की को बदल दिया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हुए। सदर एर्दोगान के तारीख़ी दौरे पर इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। IMF वफ़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त से उनसे मिला होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जवाब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, IMF के प्रोग्राम की वजह से हमें पैसे मिले, हमें सांस लेने का मौका मिला। IMF अपने प्रोग्राम में मालियाती नज़्म ज़ब्त चाहता है। अदलिया इस मामले में हुकूमत की मददगार हो सकती है। मुलाकात की यही वजह होगी। ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है उसको इम्पोज करने की ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और IMF की वो कंडीशनैलिटी भी है। उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, जुडिशरी हमारी मदद करे, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करे, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई रोल नहीं बनता। बाकी उनके प्रोग्राम के तहत जो है हम सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हीं के प्रोग्राम के तहत हमें जो पैसे मिले हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हम हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है, मजबूरी है। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या है। लगता है IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कठपुतली थे, उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्हें चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। जो है वो धांधली की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है, ये आवाम का फैसला है। एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। हम इनसे कोई तवक्को नहीं रखते और उनको चला जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है उनको हमारे इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले हैं। बानी PTI ने शेर अफसल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत कर दी। आज अडयाला जेल में दौरान समात बानी PTI ने रहनुमाओं से कहा, शेर अफसल को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शेर अफसल मरवत के खिलाफ बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की शिकायतें थी। शेर अफसल मरवत को निकालने से मुतालिक बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसी किसी हिदायत से लाइल्म है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, उन तक ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। जैसे ही हिदायत मौसूल होगी अमल दरामद होगा। ऐसे मसाइल जब आ जाते तो हमारा इंटरनल मामला है। मैं अभी पार्लियामेंट में हूँ और मेरे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई निकालने का, लेकिन एनीवे ये हमारा इंटरनल मामला है, तो डील करेंगे इसके साथ। लेकिन इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन कोई जारी हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ, देखो नोटिफिकेशन मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की आती है मैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार है। अदरवाइज मेरे पास अभी तक एज वी स्पीक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन। कराची में गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी रोड के करीब फायरिंग से हलाक शख्स की शनाख्त हो गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाला डाकू था, जिसकी शनाख्त अदनान के नाम से हुई है, जिस पर पहले से मुकदमा दर्ज है। हलाक मुलजिम का ताल्लुक रहीम यार खान से है। पुलिस ने मुलजिम से मोटरसाइकिल बरामद कर ली जो उसने साथी के हमरा सदर से छीनी थी। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम मौसमियात के करीब फ्लाईओवर पर शहरी की लूटने की कोशिश कर रहा था, जिस पर शहरी ने फायरिंग कर दी थी। सक्खर में दबर थाने की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 15 साला लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक लड़की की शनाख्त शकीला के नाम से हुई, जिसकी लाश ज़ाबता कार्रवाई के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इससे पहले फायरिंग से एक नौजवान भी मारा गया था।
पुलिस ने बताया कि मवेशी चोरी पर गुज़श्ता साल से फरीकैन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, जिसके नतीजे में अब तक 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बतौर चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी को गवर्नर इनिशिएटिव के तहत सोलर एनर्जी मंसूबे पर मुंतकिल करने का मुआहिदा कर लिया। कामरान टिसोरी कहते हैं कि जिस तेज़ी से गिरफ्तारी की, वैसे ही कातिल डंपर मालिकान और ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। सईद गनी को कहता हूँ, हर चीज़ को मजाक में लेने के बजाय काम पर फोकस करें। राफे हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस में चांसलर कामरान टिसोरी की सरबराही में सर सैयद यूनिवर्सिटी को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए रेड स्टोन एनर्जी और सर सैयद यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहिदा हो गया, जिससे बिजली की मद में 5 करोड़ की बचत होगी, जो तलबा की तालीमी जरूरियात पर खर्च होंगे। डंपर हादसात और शहरियों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि 2 माह से शहर में ट्रैफिक गर्दी जारी है। यहाँ एहतजाज करने वाली शहरी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन कातिल ड्राइवर नहीं। पिछले 2 महीनों में 70 से जायद लोग, जितनी तेजी आपने गिरफ्तारी में दिखाई है, उतनी ही तेजी उन कातिल डंपरों के ड्राइवर्स और मालकान को पकड़ने के लिए भी दिखानी चाहिए। सईद गनी के बयान पर नाराजगी का इजहार करते हुए गवर्नर सिंह ने सईद गनी को संजीदगी का मुजाहरा दिखाने और काम पर फोकस करने की तंबीह कर डाली। सईद गनी साहब ने मेरे डंपर के बयानात पर इतना मज़ाहिया खेस और नॉन सीरियस बयान देना कि गवर्नर जो हैं वो एडवाइज़र लग जाएं डीआईजी के, मुझ पर आप बाद में तनकीद कर लीजिएगा। पहले आप उन ऐसे डंपर मालकान और ड्राइवरों के लिए बयान दें जिन्होंने 70 जानों को इस शहर की जाया कर दिया। कामरान टिसोरी ने बानी पीटीआई को भी ऑफर कर दी। कहा, अगर उनका कोई बंदा घंटी आकर बजाता है तो सालसी का किरदार और इनके बैरिक में बिजली नहीं तो उसका बंदोबस्त भी कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। कराची में सड़कें ब्लॉक करने पर FIR दर्ज की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का बड़ा ऐलान। कहा, डंपर माफिया ने जिस तरह एहतजाज किया था, उनके खिलाफ भी FIR काटेंगे। तमाम तंजीमों को खबरदार कर रही हैं, शहर की सड़कें ब्लॉक ना करें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि कराची में तमाम कचरा उठाने वाली सरकारी गाड़ियों की टैगिंग की जाएगी। हेड कांस्टेबल को चालान काटने के इख्तियारात देंगे। में जो भी आएगा रोड की ब्लॉकिंग करेगा के खिलाफ फौरन हम FIR काटेंगे। वार्न कर रहा हूँ, डंपर एसोसिएशन या जो भी एसोसिएशन बनी हुई है, तो अगर पॉलिटिशियंस की तरह बयान देंगे और इस तरीके से कल जैसे इन्होंने 1 घंटे के लिए कराची के रोड बंद किए, आइंदा उनके खिलाफ में FIR करेंगे। हैवी ट्रैफिक है, एक्सेप्ट जो कि हमारे गार्बेज उठा रही है, उसके अलावा बाकियों को बैन कर रहे हैं। इनके टाइम पर रेजिडेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको भी जो है रिवाइव कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कि शहरी लिहाज से दिन में आवाम के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा और कोई चीज़ रात में ही 11 से 6 तक वो आएँ। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया, डंपर हादसात पर एक्शन ना लेना सूबाई हुकूमत की बेहिसी को जाहिर करता है। सिंध के हुक्मरानों को अल्लाह का खौफ नहीं, ताजिरों को बुलाकर कहना चुगली क्योंकि मसाइल का हल नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा के एक ग्रुप से खिताब किया। आर्मी चीफ ने तलबा पर जोर दिया है वो पाकिस्तानियत को अपनाएं, तालीमी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल के लिए कोशा रहें, ऐसी महारतें पैदा करें जो मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाएं। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने नौजवानों से कहा कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़ौज का किरदार उजागर किया। बैरूनी ख़तरों, सरहद पार दहशतगर्दी के बारे में भी नुक्ता नज़र पेश किया। दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ कौमी जद्दोजहद में अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। बिजली की कीमत कम करने पर IMF मान गया, वफाकी हुकूमत से प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को बताया, MD IMF से मुलाकात में बिजली की कीमतों में कमी पर बात हुई। उन्होंने जवाब दिया, हम तैयार हैं, आप प्लान लेकर आएँ, गौर करेंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए थोड़ी सी खुशी, 1 माह बिजली सस्ती। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा का कहना है कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इत्तलाक लाइफलाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर नहीं होगा। ये कमी के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी लागू होगी। के इलेक्ट्रिक के लिए नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत कमी की गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मुल्क में रवां साल का दूसरा पोलियो केस सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पोलियो केस सिंध के ज़िला बदीन से रिपोर्ट हुआ है। मुतासरा केस में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक हुई है। रवां साल का पहला पोलियो केस DI खान से रिपोर्ट हुआ था। 2025 की पहली मुल्कीर इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। पुलिस हुकाम ने बताया मुल्क भर में मुहिम के 99% अहदाफ हासिल कर लिए गए। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 से 9 फरवरी 2025 तक चलाई गई। मुहिम के दौरान 45 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 2024 में मुल्क भर से 74 पोलियो केस रिपोर्ट हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 22, बलूचिस्तान 27, सिंध 23, पंजाब और इस्लामाबाद में एक पोलियो का केस सामने आया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जुमेरात की शाम सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी मुलाकात से पहले गैर कानूनी भारतीयों की अमरीका बदरी पर दबाव में हैं। सदर ट्रंप मुतवक्के तौर पर भारत पर भी तिजारती टैरिफ बढ़ाने का इरादा रखते हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कैपिटल हिल का दौरा किया। कांग्रेस अरकान को गुरपतवंत सिंह ने कातिलाना हमला साजिश में मोदी की मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। ट्रंप मोदी मुलाकात के मौके पर सिख कम्युनिटी और भारत में बसने वाली दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, सदर ज़ेलेंस्की भी पुतिन की तरह अमन कायम करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा उनकी दोनों रहनुमाओं से जंग से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही अमन के ख्वाह हैं। जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जुम्मे को इजलास होगा। उम्मीद है मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहेंगे। ये वक्त इस मुज़हिका खेज जंग को रोकने का है। इस जंग से बड़े पैमाने पर अमवात और तबाही फैल रही है। उन्होंने सऊदी वली अहद की मौजूदगी में रूसी सदर से मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया है। अमरीकी मीडिया ने एलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियों के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा टेस्ला कंपनी को $400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है और टेस्ला से ही बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदेगा। अमरीकी खबर रसा इदारे ड्रॉप साइट ने सरकारी दस्तावेजात शाया कर दी। आम टेस्ला ने ट्रंप के इंतखाबात के बाद $400 मिलियन का मुआहिदा मिलने की पेशगोई की थी कि टेस्ला अमरीकी महकमा खारजा का सबसे बड़ा मुआहिदा मुतवक्के तौर पर हासिल करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने फौरी तौर पर तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत पे इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। मौसम जो हुआ है सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और ठंडी हवा चल रही है और सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत भी महसूस हो रही है। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। के औकात में मौसम खासा गर्म होता है जबकि रात के जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज बारिश का इम्कान है और उसके बाद जो है मौसम मज़ीद जो है वो सर्द और इसी तरह से सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी जबकि दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा। जी, कराची में मौसम बदलना शुरू हो गया। मौसम सरमा के इख्तिताम के साथ ही मौसम गर्म शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम के बारे में बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में मौसम सरमा का इख्तिताम है और अब बाहर का जो मौसम है उसकी शुरुआत है। ताहम सुबह का वक्त है, इस वक्त हल्की सी ठंड है। जो दर्जे हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। जो मौसम सरमा है वो अब अपने अख्तिताम पर है और जो मौसम बहार है उसकी शुरुआत हो गई है। फ़िलहाल कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम, मुल्की मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमती समरात आना शुरू हो गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से लेकर अब तक 148 अरब 27 करोड़ और 60 लाख रकम वसूल हुई। क्रैकडाउन के दौरान 1,15,538 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर से बिजली चोरों से 78 करोड़ 30 लाख से ज़ायद रकम वसूल की।
लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो में नेजाबाजी के मुकाबलों का तीसरा और आखिरी रोज मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। हसन हफीज की रिपोर्ट। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो में टेंट पेगिंग के मुकाबलों का आखिरी रोज शहसवारों ने घुड़सवारी और नेजाबाजी की कमाल महारत का मुजाहिरा किया। गवर्नमेंट जो है ये हमारा सकाफती खेल है, इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही, इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा राइडर्स इनकरेज हों और ऐसी गेम्स को हम और प्रमोट कर सकें। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से महजूज हुई। ऐसी हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चों को दोबारा स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों ने हॉर्स एंड कैटल शो के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। कैमरामैन सैयद मेहताब के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।